welcome to our Chief Speaker, Professor P.K. Seth sir. We are a little delayed because we are awaiting for Mrs. Janak Singh, wife of Professor I.V. Singh, who has kindly agreed to grace the occasion and participate in this first memorial lecture meeting. Outside the frame, so इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। Joined us online is the technological access which has made people sitting far off in different parts of the world. Lucknow is facing acute cold season this year, unlike previous years. For the last 20 years, mid-February should have been a little warmer. After 14th of January, it's normally warmer, but we are having pretty chilly winds, and this morning also it was quite cloudy. I hope people sitting in their comfortable zones all across the world. Professor I.V. Singh has been a legend, undoubtedly. Of all the students that have been produced by this department, Inbir Singh Sahab happens to be one of the leading, I would say a leader in sense of different aspects of societal as well as a professor, as a student, as a researcher, and as a mentor to many of us. He has set different level of excellence, not only in the field of geology or sedimentology, but in my personal experience I can very well share with you that almost in every field of geology he had extreme knowledge. Many of you may be aware or may not be that he did his PhD on hard rocks, on metamorphic rocks in European region. Despite that, he started working in the field of sedimentology, and at the very initial level, after doing his PhD from Germany, he started working on the recent sedimentary environments, and along with Professor H.E. Reineck at Senckenberg Institute, he was able to produce a book, Depositional Sedimentary Environment, which became a textbook for all the students of the sedimentology and all across the globe. That book was translated into Chinese. The same book was published by Russians in Russian language. And perhaps that's the only book I know in geology that has been translated in at least these two languages. The aura of Professor I.V. Singh, I would certainly like to mention, was something which was very different than most of the scientists we have, because he left a mark by way of his original thinking. His presence wherever he used to be was always felt, because he was the one who used to question what has been published, who used to question what has been published even in the books, which was very amazing, because as a student of geology we always thought that what has been published is the silver line or the gold line. He used to say, always
get back to the original reference, because many a times people refer which is not there in the text of the reference they are quoting. And almost, I think, in any field of geology where he has worked, he was able to point out the deficiency that was there in the publications, and through that he used to visualize the concepts which were absolutely mind-boggling. No one would have thought about those. I'm really happy that I happened to be one of his students, the first student who could complete his PhD when he was a lecturer in this department. And staying with him, I not only learned the tenets of sedimentology, I'm still a student of geology and sedimentology, but many things I could see, I could live with whatever he has been doing, seeing him from a distance, seeing his papers, studying, reading those texts. I was able to learn many things which were normally not possible for us. Not only me, almost 20 students were able to complete their PhD under him in different facets of sedimentology and geology. And in a span of almost, let's say, about 40 years that he had spent in this department, he has been a visiting professor at Louisiana State University in United States of America. He has been visiting Europe very regularly, and his students, who are now spread all across the globe, they are themselves proven that staying with Professor I.V. Singh had made a difference in their life. Today, it's 1 year since we lost him. He fought a battle for almost 3 years, having some problem with his breathing system. But after even staying in almost 2 to 3 months in ICU, he simply said that I don't want to stay in this closed hall. If you want to let me live, just take me back to my home. And that was amazing. And he recovered. And he used to get in touch with all of us. We used to visit him, and he always was smiling. And even with a very bad health at the end of his life, he was able to convince us that we must work on. So those inspirations are going to live forever. Such legends, they are never gone. They always leave a tradition. They leave a concept for originality. They are the one who are the leading light for the generations. I think there must have been about 50 students who have joined him for PhD and stayed with him for some time, and all of them, they have been doing very well, because very small things he used to be observant, and he used to tell us. I remember while traveling for field work in a couple of times when there was no reservation, मैंने उनसे कहा सर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई बर्थ नहीं तो अर्थ से चलेंगे, और वो कंबल एक दो कंबल हम लोग लेके जाते थे, जमीन पे बिछा करके साथ साथ बैठे बैठे चले जाते थे. That was the simplicity of Professor I.V. Singh. I am happy that I welcome Mrs. Janak Singh, who has just joined us, and on behalf of this department family, we are
now going to formally start the program. I would request Professor Ajay Mishra, head of the Department of Geography, to please come over the dais. Thank you. Please come on the dais. लेकिन मरने के बाद भी जो लोग जीवित रहते हैं उनका जीना सार्थक होता है और उनकी मृत्यु भी बहुत से लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होती है। प्रोफेसर आईवी सिंह, जो इस भूविज्ञान विभाग के छात्र भी रहे और शिक्षक भी रहे, जो हम सबके गुरु रहे, बहुत से लोगों के मेंटर रहे, बहुत से लोगों के शिक्षक रहे, और हमें लगता है कि सिर्फ उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं दिया, उन्होंने हम लोगों को फील्ड में भी बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ सिखाया। बहुत सी मॉरल और सोशल वैल्यूज के बारे में भी जीवन पर्यंत बताया। यह सदा बताया कि सत्य के लिए सदैव संघर्ष करते रहना है और कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो, आपको उसके सामने सत्य को स्वीकार करना है और सत्य बातों को उजागर करना है। इस तस्वीर के रुख को जरा गौर से देख, इसमें एक दौर की तारीख नजर आती है। मैं यहां पर उपस्थित सारे मंचासीन व्यक्तियों से ये निवेदन करता हूं कि वो प्रोफेसर आईवी सिंह सर के प्रतिमा पर, उनके जो पोर्ट्रेट है उस पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर डीएम बनर्जी सर, जैन सर दिख रहे हैं, कमल जयसवाल सर दिख रहे हैं, राजीव निगम सर दिख रहे हैं, जयकृष्णा सर भी दिख रहे थे, सर के स्टूडेंट प्रदीप श्रीवास्तव दिख रहे हैं। 42 लोग जी 42 लोग दिख रहे हैं सर। सबका नाम जो डिस्प्ले हो रहा है वो 7-8 लोगों का ही हो रहा है, बाकी अगर हम स्क्रीन मूव करें तो दिखाई देंगे। इस समय सर की जो फोटो है उसके ऊपर पुष्प अर्पित करके सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विनीत वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा, वायु यूनिवर्सिटी के हेड मल्होत्रा जी, बीएसआईपी से आए हुए राजेश अग्निहोत्री जी, डॉक्टर विक्रम राय साहब, डॉक्टर सेन शर्मा जी, सब लोग से डॉक्टर रामेश्वर बली, डॉक्टर पूर्णिमा बली, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर समीर, सबसे मैं निवेदन, डॉक्टर सर्वेश, अंशुमानी शर्मा, जितने लोग हैं कि वो पुष्प अर्पित करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नमस्ते मित्रों, वेलकम। श्वेता,
प्रोफेसर आईबीएन सिंह करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद से मैं आमंत्रित करता हूं भूविज्ञान विभाग के हेड प्रोफेसर अजय मिश्रा को कि वो आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रोफेसर अजय मिश्रा। July 1943 and Brahmlin sad demise 11th February 2021. Indrabir Singh, this is the full abbreviation of his name, and popularly he is known as I.B. Singh. Great researcher, great teacher and great mentor. आज मैं यहाँ खड़े होके उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का गर्व है कि इतनी महान शख्सियत इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रही। इस डिपार्टमेंट में हम लोगों को अपने ज्ञान से अलंकृत किया और हम आज जियोलॉजी के फील्ड में दुनिया वालों को बताते हुए गर्व अनुभव करते हैं कि हाँ देखो आई.बी. सिंह साहब हमारे डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। भौतिक रूप से वो हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें, उनके लिखे हुए सैकड़ों रिसर्च पेपर जब भी हमारी निगाह से गुजरते हैं, जब भी हम उनके पन्ने पलटते हैं, जब भी उनको देखते हैं तो साक्षात प्रेरणा के रूप में वो हमारे बीच आज भी उपस्थित है और इसी को अमरत्व कहते हैं। आज भी हम लोगों में, हमारे डिपार्टमेंट में, विभाग में उनका नाम करीब करीब रोज हम लोग लेते हैं और उनके किए हुए कृत्यों से, उनके किए हुए रिसर्च से, उनके कहे हुए शब्दों से आज भी प्रेरणा लेते हैं। मैं कृतज्ञ हूं मिसेस आई.बी. सिंह साहब का कि उनकी उपस्थिति इस बात का द्योतक है, इस बात की प्रतीकात्मक गवाही है कि सर का आशीर्वाद अभी भी हमें उसी रूप में प्राप्त है और जो विरासत वो हमारे लिए छोड़ गए हैं उन्हीं की विरासत को बढ़ाना हम लोगों का दायित्व बनता है। चाहे वो डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना हो, चाहे वो जियोलॉजी के विषय को आगे बढ़ाना हो, उसी प्रयास में मेरे हाथ में जब से विभागाध्यक्ष की बात आई है तब से मैं स्वयं और अपने सारे कुलीग्स और सहयोगियों के साथ एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। एक गिलहरी प्रयास है मेरा कि मतभेदों के बावजूद, विभिन्न ओपिनियंस के बावजूद भी हमारा ये दायित्व है कि हम अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाएं, अपने विषय को आगे बढ़ाएं और इसका सहयोग मैं इस मंच पर खड़े होकर सभी से अपील करता हूं कि इसमें सब लोगों को सहयोग करें, जिससे हमारा विषय आगे बढ़े, हमारी विरासत आगे बढ़े और जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, स्टूडेंट हैं, वो इस विषय को बहुत अच्छे से समझे और इसमें आगे बढ़ के अपने जीवन को कामयाब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, चाहे भौतिक रूप में, चाहे परोक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आके हम लोगों का जो उत्साहवर्धन किया है, जो हमको एक मजबूती प्रदान करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अजय मिश्रा जी। शिक्षक हो, वो भली भांति उनके कार्यों से परिचित है, उनके बारे में अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन तब भी जो नए छात्र हैं उनकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं सर के बाल सखा रहे प्रोफेसर डी.एम. बनर्जी साहब को कि वो सर के बारे में संक्षिप्त में कुछ
बताएं। प्रोफेसर डी एम बनर्जी साहब। ऐसा है कि मेरे ज्यादा फैन बहुत कम लोग बहुत लंबा रहा है। 1958 से लेकर और ये वहाँ जाएगा मैं लोगों के लिए मैं कहूँगा कि एक मॉडल टीचर है, मॉडल रिसर्चर, सारे हिमालय की स्टडी करके उन्होंने बनाया एक सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट जो प्रोफेसर अपने 50 साल से कोई पॉइंट जो है फोन वहाँ पे रख देना इस तरह की चीजें बहुत उन्होंने मेरी लद्दाख में ये लोग लद्दाख में उन्होंने जिंदगी में चाहते कभी भी जिंदगी में चाहते पर वो एक विजिट में उनकी जो ऑफर जो थी जो बात लद्दाख की जो कहानी की सारा बच्चे आते तो उसको उन्होंने एक मुख में बदल दिया जितने भी उनके पार्टिसिपेंट थे उन्होंने पेपर बहुत सारे आइडिया थे कि ये मॉडर्निटी की जो इस तरह से मॉडर्निटी के सेगमेंट से कैसे बने ये स्वीपिंग वेग में उन्होंने जो है सारे कंसेप्ट को जो है बिल्कुल खत्म करके और नए कंसेप्ट आके हम लोग सब लोग फॉलो कर रहे हैं। ये चीज जो थी ये हमारे जो नए विद्यार्थी हैं नए लोग हैं इन लोगों को समझना चाहिए कि मुझे सीखने के लिए जो किताब में लिखी हुई है या जो किसी मास्टर टीचर सर ने कहा है क्लास में ये है उसको बहुत कम करके मत मानो खास करके थियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है इसमें पॉसिबिलिटी बहुत होती है जब बने तो तक हम लोग तो थे तो हम जो देख रहे हैं उसी को इंटरप्रेट करते हैं और करके ये इंटरप्रेट में क्या चीज छोड़ते हैं और क्या चीज नेगलेक्ट करते हैं अक्सर ये होता है जब रिप्रेजेंट देखना चाहते हैं तो जिसको जो हमारे पेपर में होती है उसको तो हम नजर करते हैं और जो हमारे करने में जाती है उसको छोड़ देते हैं वो सबको मत कभी मत छोड़िए क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज है कि हमें लग रहा है कि ये तो हमारे करते हैं तो बदलेगा कि जो सिविल काम जा रहा है उससे जो बाहर जा रहे हैं ये गलत बात है। ये चीज को हमेशा एक्सेस करना उसको भी देखो चीज को सोचो और प्रसाद चाटो के चलो कि थियोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या रहती है ये चीज जो हम लोग भी ऐसे हम लोग क्लास हम लोग स्कूल से शुरुआत की हम लोगों की यूनिवर्सिटी में साथ हुआ है नौकरी में साथ में हम लोग रहे एक साथ रहे उसके बाद फिर जब ये विदेश में रहे तब हम उनके साथ रहे हम लोग साथ अपने पुराने दोस्तों से मिले जैसे हम लोग एक बार मैं भी
इसके अलावा भी बहुत समय हम लोगों ने एक साथ फील्ड किया, फील्ड में हम लोगों ने एक साथ काम किया। तो ये सब चीजें जो है जो साइन करती है कि मेरा नमाज हमारा बहुत गहरा था और पिछले कुछ साल तो भी बहुत भटकते हैं अपने लंग्स के चक्कर में, बहुत बुरी तरह से कोई तरह से अस्पताल से लाया गया था, ठीक हो गए। हम लोग को सोच रहे थे तो ठीक हो गए, अचानक एकदम 1 साल बाद उनका निकल लगा तो फिर वो समझ गए। जी आवाज आ रही है सर? If you are to survey of Canada, you talk to anybody, go to anybody's room. If he's a sedimentologist or has some connection with sedimentary geology, his book will be always there. So, and he's such a sharp mind, such a original mind he had, When one of those my visits, I was giving a talk in Lucknow University, and so. And he was the chairman and so soon after I started to talk, he had to go for some business something. And towards the tail end of my talk, he came in just around 5 minutes. And he asked me very pointed questions. And I was surprised. He was not able to how could they catch up on everything that's gone through? But just wanted to show that he had such a original thinking and such a brilliant mind. What can I say? Something bad can never be filled. Okay, thank you for giving me the Thank you to Dr. D.M. Banerjee sir and वो नीचे करो two of the classmates of Davis sir. अब मैं कुएन भार्गव साहब से निवेदन करूंगा कि वो सर के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएं। डॉक्टर कुएन भार्गव। यहाँ उपस्थित साथियों एवं छात्रों तथा संचार माध्यम से जुड़े सभी गणमान्य मित्रों, प्रोफेसर सेठ साहब, श्रीमती जमैत सिंह जी, प्रोफेसर अजय मिश्रा एवं सभी आमंत्रित साथियों, आज प्रोफेसर आई.बी. सिंह साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपके सम्मुख उनसे जुड़ी कुछ तुल्य कुस्मित सुगंधित यादों को साझा करना चाहूंगा। यूं तो ये यादें शुरू होती हैं लगभग 5 दशकों पूर्व, जब मैं एक बच्चे के रूप में लखनऊ के नादार महल स्थित उनके आवास जाया करता था। प्रोफेसर सिंह के परिवार से हमारे परिवार के बहुत पुराने ताल्लुकात थे, या यूं कहें कि उनका, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार साहब का और हमारे पिताजी एवं चाचा जी का बचपन एक ही मोहल्ले में बीता। अतीत की गहराइयों में जाएं तो प्रोफेसर सिंह और प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार साहब मेरे पिताजी के विवाह में सम्मिलित हुए बारात में हरदोई गए और मेरे भाई साहब श्री विक्रम राय जी
उनकी बारात में पूरनपुर गए। ज्यादातर लोग इंद्रवीर सिंह साहब को उनके शोध की पराकाष्ठा के कारण जानते हैं, परंतु यह उनके विशाल व्यक्तित्व का बहुत ही सीमित पहलू था। प्रोफेसर सिंह संगीत के भी असीम रुदा ही नहीं, देवज्ञ भी थे। हिंदुस्तानी संगीत के अतिरिक्त पाश्चात्य संगीत में रॉक, जैज, पॉप, कंट्री म्यूजिक, बीथोवन तक का ज्ञान उनमें परिमार्जित था। गजलों के शौकीन, उनके कलेक्शन में बेगम अख्तर, गुलाम अली, मेहदी हसन आदि के अतिरिक्त भूपेंद्र और हरिहरन के एलपी रिकॉर्ड भी हुआ करते थे। जगजीत सिंह साहब की गजलें इंद्रवीर साहब को फेवरेट गजलों में, गजल गायकों में उनके एक थे। अतीत के अन्य पन्नों को पलटता हूं तो प्रोफेसर सिंह के विशाल पहलुओं में खो जाता हूं। सांसारिक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उनका दखल न हो, और वो भी उस क्षेत्र के सभी पहलुओं को गहराई से छूता हुआ, चाहे वो मुगलाई व्यंजनों की बात हो या कबाबों की वैरायटी की, आइसक्रीम के दुनिया भर के नाम हो या मोका से लेकर लाते काफी और उसके बीच 2500 प्रकार की कॉफियों की, श्रीलंका की चाय से लेकर दार्जिलिंग, असम और चीन तक फैली चाय के प्रकार, फलों की बात करें तो नाशपाती से लेकर नागा और बाबू गोशा में अंतर, और यह सब मैं बहुत संक्षेप में ही कह रहा हूं। किसी भी विषय में घंटों आपसे संवाद करने का एवं अपने ज्ञान से अभिभूत कर देने का उनका एक विशाल व्यक्तित्व था। मैं आज जियोलॉजी की कोई भी बात नहीं करूंगा। वैसे तो बहुत छात्रों ने उनके साथ रिसर्च ज्वाइन की, परंतु उनके पहले छात्र के रूप में पीएचडी अवार्ड होने का गौरव मुझे ही प्राप्त है। मैं जो भी बन सका उसका संपूर्ण श्रेय प्रोफेसर इंद्रवीर सिंह साहब को ही देता हूं। कुछ बातें जो विशेष रूप से मैंने उनसे ग्रहण की, उसमें सर्वप्रथम रिसर्च में ईमानदारी बरतना मुख्य है। सरल शब्दों का प्रयोग और छोटे सेंटेंस बनाना भी उन्हीं की वजह से मैं सीख पाया। पीएचडी के दौरान शुरुआत में एक सैंपल को 2 महीने तक लगातार ऑब्जर्व कराना, जिसने मेरे छक्के छुड़ा दिए और रिसर्च के प्रति सारी आग बुझा दी, पर परिणाम स्वरूप एक कीन ऑब्जर्वर की विशेष शक्तियों का भी विकास मुझ में करा दिया, जिसके कारण कुछ विशुद्ध एवं नवीन खोजों को मैं कर सका और आज भी कर रहा हूं। अगर सिंप्लिसिटी उनका स्वभाव था, तो दूसरी तरफ किताबों और शोध पत्रों में छपी बातों को प्रश्न चिन्हित करना उनकी दक्षता थी। प्रख्यात विद्वानों से रिसर्च विषयों पर संवाद कर उनकी की गई गलतियों को जग जाहिर करने के कारण बहुत से सीनियर प्रोफेसरान उनके सामने पढ़ने से घबराते थे। ऐसे कई मौके मुझे याद हैं जिसमें कॉन्फ्रेंसेस के दौरान इतनी गर्मी गर्मा हो गई कि सीनियर लोगों को बीच बचाव करना पड़ गया। उनके द्वारा निष्ठा से किया गया शोध हमेशा अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचा। शायद प्रभु ने उनको ऐसी प्रतिभा से संपन्न किया था कि वो पत्थरों को किताब की तरह पढ़ लिया करते थे। शायद वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के धनी थे। मेरे विचार से उनका इंट्यूशन और प्रेमोनिशन इतना प्रबल था कि वो पत्थरों में वो सब देख लेते थे जैसे कि उनके सामने ही ये सारे पत्थर बने हों। विस्मयकारी प्रतिभा के धनी। आने वाले समय में ये विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि हवाई चप्पल और पैजामे में दिनचर्या करने वाला व्यक्तित्व का धनी हिंदुस्तान और दुनिया के भूविज्ञान में बदलाव लाने वालों की कतार में सबसे आगे खड़ा था। हम सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में रहने का मौका मिला। इंद्रवीर सिंह साहब को मैं भगवान के तुल्य मानता हूं, जिसको हमने साक्षात देखा, समझा और
महसूस किया। ऐसे लोग संसार से कभी जाते नहीं, जिसको उन्होंने छू लिया वो सोना बन गया। ऐसा जादुई था उनका व्यक्तित्व। मैं हमेशा उनको यादों में, मैं और हमारे सभी सहयोगी साथी उनके यादों में रणवीर सिंह साहब जीवित रहते हैं। धन्य है ये भारत देश जहां उन जैसे भूवैज्ञानिक और शिक्षक पैदा हुए। नमन है प्रोफेसर रणवीर सिंह साहब, धन्यवाद। ये लखनऊ विश्वविद्यालय भूविज्ञान विभाग की भी हम कहें कुछ महिमा है कि प्रोफेसर आईवी सिंह तो यहाँ पे शिक्षक भी रहे, छात्र भी रहे। जो लोग यहाँ पे सिर्फ शिक्षक रहे, सिर्फ छात्र रहे और छात्र रहने के बाद से इस विभाग को छोड़ दिया, ये विभाग आज भी उनको अपना छात्र मानता है, इस विभाग का हिस्सा मानता है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, चाहे वो डी.एम. बनर्जी सर हो, चाहे अविनाश चंद्रा सर हो, चाहे जय कृष्णा सर हो, चाहे ए.के. जैन सर हो, चाहे राजीव निगम सर हो, ये लोग यहाँ से इस विभाग से निकल के भले ही दिल्ली चले गए, गोवा चले गए, रुड़की चले गए, लेकिन हम लोग आज भी यही इनको लखनऊ विश्वविद्यालय भूविज्ञान विभाग का हिस्सा ही मानते हैं और बड़े ही अधिकार से जो भी बात कहनी होती है इन लोगों से हम लोग बात करते हैं और चर्चा भी करते हैं। अब मैं जो आज के, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने सर के बारे में बताया वो लोग भी सर के क्लासमेट रहे थे। और जो आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर टी.के. सेठ साहब, जो यहाँ निदेशक रहे कई वैज्ञानिक संस्थानों के, सेवानिवृत्त होने के बाद भी बायोटेक पार्क के भी निदेशक रहे, वो भी सर के बीएससी के क्लासमेट रहे हैं। वो आज व्याख्यान देंगे लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंट पे, लेकिन उनके व्याख्यान देने से पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर विविता राय साहब को कि वो कुछ पीपीटी बनाए हुए हैं सर के ऊपर, कि वो उस पीपीटी को दिखाएं। छोटा सा यादों का झरोखा है सिंह साहब के साथ। कुछ फोटोग्राफी मैंने उन्हीं से सीखी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 1945 से 2021 तक का समय शासनिक विभाग की तस्वीर आपके सामने है। 1960 के आसपास की, जब प्रोफेसर आईवी सिंह साहब लगभग उसी समय उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। और ये उनके बीएससी की तस्वीर है। प्रोफेसर डी.एम. बनर्जी साहब के सौजन्य से एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मिली। इसमें प्रोफेसर आईवी सिंह साहब ये यहाँ पर है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर की शायद पिक्चर है और बीएससी के जितने समय छात्र थे वो सब इसमें है। प्रोफेसर डी.एम. बनर्जी साहब भी हैं, मुझे लगता है रंकार साहब भी होंगे। ये डी.एम. बनर्जी साहब है यहाँ पर। और आईवी सिंह साहब के बेटे मिट्ठू जी को अगर आप देखें तो बिल्कुल लगता है उनकी एक सी तस्वीर है आईवी सिंह साहब की। नेक्स्ट, मैहर में एक फील्ड ट्रिप ले गए प्रोफेसर आईवी सिंह साहब, उनके साथ उनके घनिष्ठतम मित्र प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार साहब। ये शायद 1975 के आसपास की तस्वीर है, हमारे अग्रज विक्रम राय साहब ने दी है। मैहर के रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं, उस समय भी उनका ऐसा ही स्वच्छंद स्वरूप हुआ करता था। नेक्स्ट प्लीज। ये विभाग की एक पुरानी तस्वीर, इसमें दाएं हाथ नीचे बैठे हुए और हम सब सारे शिक्षक जो दिख रहे हैं, अजय मिश्रा जी, मैं प्रोफेसर के अग्रवाल, बली साहब, भट्टाचार्य साहब, सुरेश साहब, एस.के. सिंह साहब। ये भी लगभग 25 से 30 साल पुरानी तस्वीर। नेक्स्ट, 1997 में एक प्री कैम्ब्रियन बेसिस की बायोसिटिकलॉजी को एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बाएं हाथ सबसे ऊपर की तरफ मुस्कुराते हुए खड़े हैं प्रोफेसर सिंह।
वो ज्यादातर सामने बैठने में अवॉइड करते थे, हम कहते थे मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ। और अन्य विभाग के जो सभी शिक्षक हैं लोग हैं वो भी दिख रहे हैं, बहुत पुराने उनके मित्र लोग भी इस तस्वीर में। विभाग पूरा का पूरा बाएं हाथ पे MP सिंह साहब है, सुरेश साहब दाहिने हाथ पे नीचे। नेक्स्ट, दो क्लोजेस्ट उनके जो फ्रेंड रहे विराज मोहन बनर्जी साहब, जिनको अभी हम लोगों ने सुना, और रविशंकर साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपके ये लोग सहपाठी रहे हैं BSc और MSc में। नेक्स्ट, एक अपने मित्र अमिताभ चक्रवर्ती साहब के साथ कॉफी को एंजॉय करते हुए किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने लखनऊ अपने विभाग के प्रांगण में। नेक्स्ट, एक और प्री-कैंडिडेट बेसिस पे कार्यक्रम हुआ, उसमें एक शोध पत्र से संबंधित वक्तव्य देते हुए। और फिर 2013 में नेशनल जियो साइंस अवार्ड का खिताब प्रोफेसर RV सिंह साहब को दिया गया। नेक्स्ट, और देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनको यह पुरस्कार या उनका सम्मान करते हुए। नेक्स्ट, एक आराम की मुद्रा, ये वो मुद्रा जो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से याद है। हमेशा यदि सिंह साहब किसी भी वक्त देख लेते थे तो पूछा करते थे कि और बताओ क्या हो रहा है, और घंटों और बताओ में निकल जाता था। ये उनका एक विशेष स्वरूप। नेक्स्ट, एक भावभीनी उनकी तस्वीर। नेक्स्ट, और मेरे पास जो संग्रह है उसमें शायद ये वो आखिरी तस्वीर है कुछ, जिसमें कि काफी बीमारी के बाद भी घर पर हम लोग मिलने गए, और उनका मुस्कुराता चेहरा हमेशा की तरह। नेक्स्ट, अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ। जी सर, जी अभी एक वीडियो भी दिखाते हैं। जी सर, ये मेरे कलेक्शन की कुछ फन तस्वीरें उनके घर पे। नेक्स्ट, और पिछले साल लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया, और इस मौके पर मिसेस जनक सिंह भी, उनकी पत्नी यहाँ पर आई और उनको सबकी तरफ से सम्मान दिया गया। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी हैं, और वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब आए हैं। ये वो किताब जिसमें भूविज्ञान लखनऊ विश्वविद्यालय की सारी दुनिया में सर के माध्यम से अपना नाम अंकित कर दिया। और ये आज की तस्वीर जब हमारा विभाग ऐसा दिखाई देता है। मैं जिन लोगों से कुछ चित्र छूट गए हैं, एक वीडियो है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर को जरा हमने पहले क्या था
So thank you. This mic is working? Yeah. Okay, that's fine. So thank you, Dr. Dhruv Singh. He's a very close friend of mine, for giving me the opportunity to say a few words. And before I tell you about today's chief speaker, Dr. P.K. Seth, I would like to share a few words about Professor I.B. Singh, for whom this lecture has been arranged. And these are some of the excerpts from the Times of India, exactly 1 year from now, February 12th, 2021. So this is such a good article, so I thought it is worth sharing a few things. And famous among students, teachers, and all the peoples of the scientific fraternity, he was known for his simplicity and his over 5 decades of contribution in the field of geology. His students who rose to positions of eminence in their respective fields said he not only taught geology, but life lessons as well. Former Director of Geological Survey of India, Vikram Rai ji said, if we could not, ये बात विभूति राय साहब ने भी शेयर की थी, but I found it very interesting, so I wanted to share it in front of you. If we could not get a reserved ticket during academic tours to excavation sites with Sir, he sat on the train floor and used to say, जब ट्रेन में बर्थ न मिले तब अर्थ पे सो जाए, वही असली जियोलॉजिस्ट है. बहुत बड़ा ही आदमी ऐसी बात कह सकता है. Then another thing which he said to his students was, if you will not add more to your knowledge, your career will come down like the landslides that occur often in Uttarakhand. This was how he taught us, because I am quoting within inverted commas. He connected every concept of geology with our lives to make us understand life and science together. Said Ravi Khan Singh ji, a senior geologist. His teaching style was unique and we all were simply fascinated all over. And he came in slippers. This was also told by Professor Vibhuti Rai, but still I will repeat. And sometimes even rushed barefoot to take lectures, since he believed that every second of his life was dedicated for his students. So great personality, great personality. Another thing with which I'll stop here is that name an institution in India and abroad in the field of geology where you will find that there will be at least one bright geologist who has been Professor Inderbir Singh's student. So that speaks volumes about him. So these were a few things which he was a legend, he is a legend, and legends, they never die. Legends, they never die, they always keep on living and inspiring the students, and they live in our hearts. So this is one part of my minuscule speech. Now the other part is that we saw a lot of photographs which were shown by Professor Vibhuti Rai, who is the first PhD student of Professor I.B. Singh, and I am showing you a living legend, that is Professor P.K. Seth. So big round of applause for Professor P.K. Seth. So I have got a selfish interest in standing out here, also because Professor P.K. Seth is one of the star alumni of Biochemistry department. और अभी विभूति राय साहब जब I.B. सिंह साहब के बारे में कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि I.B. सिंह साहब ने जिसको छुआ वो सोना बन गया जो है. यही बात उनके क्लासमेट P.K. Seth साहब पे भी लागू होती है कि इन्होंने भी जिसको छुआ वो भी सोना बन गया. तो मैंने ITRC से PhD की है डॉक्टर विश्वनाथन साहब के साथ में, जिन्होंने की लेजेंडरी PS कृष्णन साहब के साथ में PhD की इसी डिपार्टमेंट से. दोनों डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं जो है. I am a very frequent visitor to geology department. I come here 3 or 4 times during a day, and when I come here, then I feel I am not the head of biochemistry department. I always feel like I am a faculty member of geology department. और अजय मिश्रा जी हमारे हेड हैं. मैं तो इनको ही अपना हेड मानता हूँ. Now Professor P.K. Seth did his MSc in biochemistry in 1962, and for everybody who is sitting in this auditorium, I would like to tell that this year 2021 to 2022 we are celebrating the 60 years of completion of his batch. From at that time there were 10 students there in 1962, so 60 years of teaching and eminence in biochemistry department. Professor P.K. Seth did his MSc, then he did his PhD from pharmacology under legendary Dr. Parmar, and he was a scientist
E2, when I came to ITRC, it was known as ITRC, Industrial Toxicology Research Center. Now it is IITR, Indian Institute of Toxicology Research. और मैंने कहा ना कि जिसको इन्होंने छू लिया वो सोना बन गया, उसके लाइव एग्जाम्पल है प्रोफेसर आलोक धवन, जो हमारे डिपार्टमेंट के एल्यूमिनी हैं और वो डायरेक्टर रहे, पीके सेठ साहब भी डायरेक्टर रहे आईटीआरसी के, वो डायरेक्टर है IITR के इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के, और करेंटली इज द डायरेक्टर ऑफ CBMR, Center for Biomedical Research at SGPGI campus. He established बायोटेक पार्क इन लखनऊ जो है। तो सेठ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो है मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है सेठ साहब के बारे में कहने का। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं आमंत्रित करूंगा ध्रुव सेन जी को कि बस प्रोफेसर सेठ को बुलाएं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर अजय मिश्रा जी से कि वो बुके देकर आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पीके सेठ साहब को आमंत्रित करें। कि आज प्रोफेसर आईबी सिंह साहब की पुण्यतिथि के ऊपर पहला मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया। मैडम जनक सिंह जी, प्रोफेसर अजय मिश्रा, डॉक्टर ध्रुव सेन सिंह जी, डॉक्टर ज्योति राय, डॉक्टर सुधीर मेहरोत्रा, and others who are present in the hall, and again my classmate Dr. Dhiraj Banerjee, Avinash Chandra, and all others who are joining from through the communication media. डॉक्टर आईबी सिंह साहब के बारे में बहुत सी बातें आपको बताई गई। उनका व्यवहार, उनका तरीका, उनका बात करने का, उनकी साइंस, उसके सभी पर जिक्र हुआ। मेरा उनसे इतना ज्यादा परिचय नहीं रहा। कारण क्या है कि एक उस वक्त जब होते थे ना क्लासेस, तो अलग अलग ग्रुप होते थे। एक ग्रुप होता था जिसके अंदर लोग बॉटनी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी पढ़ते थे। एक ग्रुप होता था जो बॉटनी, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी पढ़ता था, और एक ग्रुप होता था जियोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी पढ़ता था। मतलब उस वक्त की जो बातें थी कि बस सबसे टॉप ग्रुप तो वही होता था जो जियोलॉजी भी पढ़ता था, केमिस्ट्री भी पढ़ता था और बॉटनी भी पढ़ता था, और सबसे लद्दड़ ग्रुप होता जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा। खैर मैं बीच वाले में। तो हम लोग दो सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ा करते थे, केमिस्ट्री भी और बॉटनी भी। तो उसी दरमियान में जो कुछ बातचीत हो जाती थी, फिर ये बीएससी ग्रुप जो था, उसके बाद में ये जियोलॉजी में एमएससी में चले गए और हम बायोकेमिस्ट्री में चले गए। और उसके बाद ये जर्मनी, और हम फिर इन्होंने तो पीएचडी जर्मनी से करी, हमने यूएसए से करी। तो बहुत ज्यादा मतलब कुछ नहीं रहा था। इसीलिए मिसेस सिंह से जब हमने कहा उनके क्लासमेट थे, तो उन्होंने कहा हम तो पहली बार मिल गए। जाहिर है क्लासमेट होना और न मुलाकात हो तो इसका मतलब बहुत दूर वाला है। तो ये बात थी मैडम जिसमें हम लोग कभी नहीं मिले। उनकी खोज हमने कब करी? जब लखनऊ में हम इंसा चैप्टर के कन्वीनर हो गए। तुमने भैया तुम तो कब फोन किया हमको? खैर याद तो थी सब। भैया तुम कभी आते नहीं मीटिंग में? बोले अच्छा अब आएंगे, अभी तक तो किसी ने बुलाया ही नहीं हमको। शायद एक आध मीटिंग हम लोग की हुई जिसमें इंजीनियर आए, बाकी फिर नहीं आए, क्योंकि वो अपने में ही बहुत बिजी रहते। जब प्रोफेसर ध्रुव सिंह ने मुझसे कहा कि भाई ये पहला लेक्चर होने जा रहा है, तो ना करने का तो सवाल ही नहीं था। मुझे भी उतना ही उत्साह था, पर हाँ ये जरूर हुआ कि बोलूंगा क्या। तो दो चीजें कॉमन थी, कोर्स, एक तो आईबी और दूसरा एनवायरमेंट।
क्योंकि मैंने देखा कि जो एनवायरनमेंट में जियोलॉजी और एनवायरनमेंट में जो है पूरी जियोलॉजी एनवायरमेंटल जियोलॉजी भी होती है। और एनवायरमेंटल जियोलॉजी क्या होती है, मतलब कोर्स जियोलॉजिस्ट के सामने तो कहना बेकार है, मगर हम इन स्टूडेंट्स के लिए जो बायोकेमिस्ट्री के खास तौर से हैं, तो उसमें यह है कि जो इसके द्वारा आप जो नॉलेज है जियोलॉजी की, यू कैन आइडेंटिफाई, remediate and hopefully prevent environmental problems, even disasters, which are again through the human activities. Human activities and environment are very, very closely related. Now everybody is aware about this greenhouses. हर आदमी बात करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही ग्रीन हाउस गैस एमिशन की। और इससे क्या है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने COP26 यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में वहाँ ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया, लाइफ, LIFE, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल है वो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करती है, तो हम कैसी लाइफ स्टाइल अपनाएं जिससे कि एनवायरमेंट के ऊपर असर न हो। He said we should adopt the lifestyle to save environment, that is cutting down the green gas emissions. He said there should be a mass movement in India so that we can enable India to reach the net zero emissions by 2070. He called for mindful and deliberate consumption instead of unmindful and wasteful consumption of the resources of the environment. This prompted me to take up this topic for my talk, that is Life for Environment, to pay tributes to my classmate and friend, Professor Indraveer Singh. The environment is being impacted by greenhouse gas emission from several sources, deforestation and other activities on earth, and other factors like population, consumption patterns and changing lifestyle due to increased income and related human activities. जो कंफर्ट में हम लोग रहने लगे, जो हमारी एक्टिविटीज लाइफ स्टाइल बदलने लगा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। The impact of lifestyle on environment is enormous. The important component of the lifestyle is the food. आप लोग सब पार्टिकुलर फूड और एनवायरनमेंट में क्या लेना चाहते हैं? But it's the food that human and animal consume. The food drives agriculture practices, and the agricultural practices drive the various inputs which for agriculture is more demand on agriculture. More demand on agriculture, you need more water, you need more pesticides, you need more herbicides, and like that it goes on, and that is where it produces, and through that it produces the greenhouse gases. Recent studies, including one which is published very recently in the Nature Food, the journal, in September 2021, has stated that food system generates 35% of the total man-made greenhouses. 35%. And the meat and the poultry products, including growing crops to feed these livestock and for the grazing of the animals, contributes
57%, 35% का सिर्फ क्रॉप उन मवेशियों को खाने के लिए, उन लाइफ स्टाइल खाने के लिए, जिसका कि मीट प्रोडक्ट और पोल्ट्री हम लोग यूज करते हैं मीट, उसके प्रोडक्शन की वजह से 57% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज आर प्रोड्यूस्ड. The other 14% जो ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, they come from agriculture and the products which are not used as a food or the feed, that is like cotton and the rubber. Cotton again, cotton का जो cotton seed oil है, जो बिनोला जो जानवरों को खिलाया था, again becomes a feed. So food से related इतना चीजें हैं. Now here the distinction is, if you look at the animal based and the plant based. The animal based food, beef is the largest contributor to the climate change. In fact, it generates 25% of the total food emissions, followed by cow milk and pork. Cow milk is about 88% emissions now, and with the pork about 7%. Now raising plant-based food for human consumption contributes 29%. अगर आप plant based food material produce कर रहे हैं, the emission is only 29% based on the greenhouses. Now note the difference, 57 and 29%. Animal based food material produce करने के लिए about 57% emissions are there. The rice is the largest among the food plant based में rice में बहुत ज़्यादा green house gas निकलती हैं, which is about 12%. And why the becomes? Because the farmers ने rice को water में होता है, पूरी field को flood कर देते हैं, और flood करने से उनको क्या फायदा होता है? कोई दूसरी weed नहीं होती. But on the other hand, lot of bacteria goes there, and this bacteria gives rise to methane. And that's one of the biggest problems which comes with the methane. Related with the agriculture practices are the packaging, transport, storage of food and other agriculture products. These are all activities again contribute to the greenhouse gases. Now we have, if you look at the population wise, we are 17% of the world people, but yet we produce only 5% of the emissions. बड़ी अच्छी बात लग रही है. 70% आबादी वर्ल्ड की और 5% वर्ल्ड का कुछ गैस इमिशन. मगर ये भी सही है कि अगर इसको वे के हिसाब से निकालें तो 2.65 बिलियन टन्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इंडिया प्रोड्यूसेस, जो कि वर्ल्ड का 50 बिलियन के आसपास है. वर्ल्ड 50 बिलियन, हम कुल 22.65, मगर फिर भी हम थर्ड हैं प्रोडक्शन में वर्ल्ड के. तो क्या हुआ, और लोगों ने इसके लिए कुछ करा है, they have taken measures. So the adoption of lifestyle changes can help in reduction of the greenhouse gases simply by shifting from animal food meat to plant-based food diets. If we shift that, we can make a shift in a big difference in the adopting the various. Similarly, we can do by adopting the various rice varieties, जिनके लिए बहुत पानी की जरूरत ना हो, ऐसी राइस वैरायटीज को हम लोग ग्रो कर सकते हैं. रिसर्च हो रही है, पीपल आर कमिंग अप, बट अगेन चेंज हैज टू बी मेड. दूसरा, बर्निंग ऑफ द पैडी. लाइफस्टाइल की बात, अगर हम बदलाव लाएं तो उसके अंदर पैडी को न जलाएं, अगेन इट विल रिड्यूस द इमिशन. वी नीड टू अडॉप्ट न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी. हमारी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी. और हमारा एग्रीकल्चर कैसा हो? न्यूट्रिशन सेंसिटिव हो. और दोनों कैसे हो? क्लाइमेट सेंसिटिव हो. एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन दोनों क्लाइमेट सेंसिटिव. So that's where we can help and do that. Now, इतनी बात हम बार बार कर रहे हैं कि एनिमल फूड जो बेस्ड फूड मटीरियल उसको नहीं खाया जाए. Now, shifting from animal based products to plant based diets have tremendously proven that tremendously help in the healthy advantage. Health के लिए भी advantage.
Very recently, a study has been published, which comes from that in the PLOS Medicine in 8th February of 2022, where they have shown, they have talked about the diets. That is, by eating the good diet, plant-based diet, you can increase the lifespan. उन्होंने डाइट डिस्क्राइब करी, वेस्टर्न डाइट, ऑप्टिमल डाइट, and of course the in-between diet, that is feasible diet, because एकदम switcher may not be possible. And what this shows that actually European diets क्या होती हैं? European diets are they are rich in meat and rich in processed food. हम लोग जैसे कहते हैं ना प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, उनकी लाइफ रिच है प्रोसेस फूड में, मीट पे, एंड द लेस ऑन द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स. उसमें भी मीट में भी रेड मीट ज्यादा होता है. ऑप्टिमल डाइट होनी चाहिए लेग्यूम्स, दैट इज बीन और लेंटिल्स यानी दाल, व्हीट ग्राम, ओट्स, बार्ले और ब्राउन राइस. अगर हम लोगों के लिए देखा जाए तो मकई और ये जो हमारा ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें जो है देयर इज अ गुड डाइट, ऑप्टिमल डाइट. अब फीजिबल डाइट उन्होंने बताया कि इट मे नॉट बी पॉसिबल, सो पीपल मे हैव 50-50 ऑफ दैट, कट डाउन द रेड मीट, ईट अदर मीट्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट. अच्छा, ये स्टडी यूएस की है, बट इट इज फाउंड कि यूरोप और चाइना में भी सिमिलर लोगों ने बेनिफिट्स पाए. बेनिफिट क्या है? इफ यू शिफ्ट एट द एज ऑफ 20 फ्रॉम एनिमल टू द प्लांट बेस्ड, यू कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पैन बाय 10 years. If you shift at 40 years, you can increase your lifespan by 6 to 8 years. And even those who are in our age group, in 80s, or nearing 80s, they can also have the benefit of 3 to 3.5 year lifespan increase by shifting your diet. So, the lifestyle changes not only helps in reducing the greenhouse gas emissions, but also give you good health, and by keeping you healthy and a larger lifespan. So I think I will stop here, and once again thank for giving me an opportunity to be with you on this very, very important auspicious moment for the Department of Geology. And once again thank Dhruv Sen ji especially for inviting me. Thank you very much. Is in the greenhouse gases and how the change in food pattern from animal diet to plant diet can help us in reducing the percentage of greenhouse gases in the atmosphere. We all know about the atmosphere and about the environment. Thank you, sir, for accepting our invitation for the first Professor Singh Memorial Lecture. सर के बारे में इतनी चीजें बताई गई. सर हमेशा ये बोला करते थे, जैसा प्रोफेसर विभूति राय साहब ने बताया, कि किसी भी व्याख्यान में वो चले जाते थे, किसी भी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में चले जाते थे, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी बातों को रख रहा हो, अगर सर खड़े होकर उसमें प्रश्न पूछ दिए, तो हम लोगों ने इस ऑडिटोरियम में भी देखा है कि कितना भी बड़ा वक्ता क्यों न रहा हो, और सर एकदम फिर एग्रेसिव हो जाते थे. आप चलिए कहीं फील्ड चलिए और दिखाइए हमको कहाँ पे है, ये हिमालय में या कहाँ पे है इस जगह पे. सर हमेशा बोला करते थे कि क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड, यूजुअली आंसर्स आर बैड. ये याद होगा सभी लोगों को. दूसरी चीज वो बोला करते थे, जब हम लोग बोलते थे कि सर उनको बड़ा अच्छा ज्ञान है, तो सर ये बोला करते थे कि बहुत ज्ञान है ये नहीं महत्वपूर्ण है, हाउ मच knowledge he has created, that is important. Acquiring of knowledge is different than the creation of knowledge. As a teacher, as a researcher, we should try to create the knowledge, and that is much more important than the acquiring of knowledge. तो छात्रों के लिए ये बहुत important है, और यही हम शोध में करते हैं कि नित्य नए ज्ञान का सृजन करते हैं. आईवी सर के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी जो नए छात्र हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा
कि चाहे वो प्री कैम्ब्रियन हो, वो मेसोजोइक हो, वो पेलियोजोइक हो, वो टर्शियरी हो या वो क्वाटरनरी हो, कोई ऐसा हिस्सा नहीं, चाहे वो हिमालय हो, गंगा का मैदान हो, दक्षिण का पठार हो, चाहे वो हमारे डेल्टा हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे सर ने काम न किया। प्री कैम्ब्रियन से लेके और गंगा के मैदान तक सर ने पायनियरिंग वर्क किया है। हिमालय की बात हो, चाहे वो केरेवा बेसिन की बात हो, चाहे वो कच्छ की बात हो। गंगा के मैदान में 1980 के आसपास जब सर ने काम करना शुरू किया था, हम लोग आज पूरे विश्व में कहीं पे भी बोलते हैं तो बड़े फक्र के साथ इस बात को बोलते हैं कि वॉट एवर नॉलेज वी आर हैविंग ऑन द गंगा प्लेन, क्रेडिट गोज टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, बिकॉज प्रोफेसर आई.वी. सिंह ही वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्लेन, गंगा प्लेन। और जब सर से ये पूछा मैंने कि सर पहले लोग क्यों नहीं काम करते थे, तो सर ने यही लाइन बताई थी कि लोगों को एक्सपोजर चाहिए होता था, आउटक्रॉप चाहिए होता था। हिमालय में आउटक्रॉप मिल जाता था, भुज में आउटक्रॉप मिल जाता था, दक्षिण के पठार में आउटक्रॉप मिल जाता था जहां पे लोग काम करने लगते थे। गंगा के मैदान में एक समतल और सपाट एरिया में लोगों को समझ में नहीं आता था कैसे काम करें। हमें लगता है महानगर में कोई ड्रिलिंग हो रही थी वेल के लिए, दैट वाज द फर्स्ट पेपर पब्लिश्ड बाय आई.वी. सिंह सर ऑन द गंगा प्लेन। उसके बाद से सर के अंडर में बहुत से लोगों ने, जो लोग सुन रहे हैं उसमें खुद ही प्रदीप श्रीवास्तव ने, मनीष ने, शिखा ने, मैंने खुद ही, हम लोगों ने गंगा के मैदान में पीएचडी की। और आज गंगा का मैदान पूरे विश्व में शोध का एक नया केंद्र बना हुआ है। विश्व के तमाम जगहों से लोग गंगा के मैदान में आज काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि विश्व को अगर गंगा के मैदान में काम करने की किसी ने दशा दी और किसी ने डायरेक्शन दिया और दिशा दी, तो वो प्रोफेसर आई.वी. सिंह सर थे। हम लोग सदैव सर का नाम लिया करते हैं। जैसा बहुत से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि न सिर्फ शोध की बात हो, किसी भी टॉपिक पे, वो संगीत की बात हो, वो फल की बात हो, किसी भी जगह की किसी भी तरीके की बात हो, सर हर क्षेत्र में अपनी पूरी दखलंदाजी रखते थे। और हमें लगता है कि हर तरीके के लोगों से हर तरीके की बात करने में सर सक्षम थे और बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। थोड़ा सा कोरोना होने के कारण जिस भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए था, हम लोग उतना नहीं कर पाए। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम विभाग ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। अनवरत हर साल 11 फरवरी को हम लोग सर की याद में एकत्रित हुआ करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से सर की सारी चीजों को याद किया करेंगे। सर की बातें, सर आज सशरीर हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके वो सुझाव, उनके वो निर्देश, उनके शोध के प्रति हमारी क्या ललक होनी चाहिए, जो वो बोला करते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट में लिखत पढ़त ही काम आती है। जब वो बैठा करते थे, जो एक उनके बैठने का अंदाज प्रोफेसर विधि राय साहब ने दिखाया, जब सर बैठ जाते थे तो जाने में उनके सामने से हम लोग सोचा करते थे, कुछ अपने आप को प्रिपेयर करते थे, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में जाने के पहले आदमी तैयार होता है, उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते थे, तब सर के सामने से जाने का साहस हो सकता था। सर बड़े ही सरल थे, बड़े ही सहज थे, लेकिन बड़े ही निर्भीक थे। उन्होंने सदैव सबको यही सिखाया कि आप सरल रहें, सहज रहें, लेकिन आपकी बातों में निर्भीकता होनी चाहिए। आपके जो भी बात आप कहना चाहें, कोई भी व्यक्ति हो, आप बड़े ही निर्भीकता के साथ उस बात को कहें। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो भी सर के संदेश से अक्षरशः हम लोग विभाग में लागू करेंगे। हमें ये भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सारे के सारे लोग जो विभाग से हर तरीके से जुड़े रहते हैं, जो इस विभाग के वेलविशर हैं, जो इस विभाग के एल्यूमिनस हैं, वो सारे के सारे लोग वर्चुअल माध्यम में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये देख के आप सब लोग, सर डीएम बनर्जी सर हों, वो जैन सर हों, राजीव निगम सर हों, चंद्रा साहब हों, जय कृष्णा साहब को देख के अभी मैं बली साहब से बोल रहा था कि बड़े स्वस्थ दिख रहे हैं सर। ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें, वर्षों तक हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहें। अंत में मैं यही बात करके आप सबको, आप लोगों ने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आप समय की शिला पर लिख गए हैं जो निशान, आप समय की शिला पर लिख गए हैं जो निशान, उसे देख रही है ये जमीन और देख रहा है आसमान। सत सत नमन, सत सत वंदन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जनक आंटी को भी और अरुणाभ और श्वेताभ को भी, क्योंकि दोनों विदेश में हैं लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं ऑनलाइन माध्यम में। अरुणाभ और श्वेताभ, जिनको हम लोग प्रेम से विधु को गप्पी और मिथु बोला करते हैं, सब लोग समय निकाले। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। नाउ ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड ओवर ए कप ऑफ टी आउटसाइड द ऑडिटोरियम। पीके सेठ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम में जो लोग भी जुड़े रहे, हाँ मेरे तो बोलना है। अच्छा प्रदीप, अभी और भी जो करेंगे सबको व्यूज मिलेंगे। अभी हम लोग एक सर बनर्जी सर एक निवेदन है, वो नहीं बोल पाए, लेकिन ये भी बोलिए कि हम लोगों ने समय नहीं। सर असल में थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि हम लोग एक तो वो देख भी नहीं पा रहे हैं सर, तो नहीं तो ऐसा नहीं था, हम लोग क्यों नहीं समय देते सर जब वो जुड़े हुए थे। तो अभी और कोई जो लोग सर जी, अब मैं अजय मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। अभी मैंने शुरू में कहा था कि हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये इस एक सीरीज की शुरुआत है और हम लोग समय समय पर ऐसे कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें जो भी आज त्रुटिवश मौका नहीं पाए हैं या जिनको बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि समय समय पर सबको बोलने का इतना मौका मिलेगा कि लोग कहेंगे कि भाई ये कोई प्रोग्राम एक डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ने शुरू किया, क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट का वो खजाना है कि इनको आप जितना भी बोलें, जितना भी जो बोलना चाहें, तो उसके लिए हमेशा स्वागत है। और अभी थोड़ा सा ये कोरोना काल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो आई होप कि फिजिकली भी आप लोगों को बुला के और यहाँ पर जो है वो पूरा मौका दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से, जो भी हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे अग्रज हैं, हमारे सहपाठी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हृदय से धन्यवाद देता हूँ मैं मैडम आईबी सिंह का और मिसेस आईबी सिंह का कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने जो आशीर्वाद स्वरूप हमको यहाँ पर हमारी जो प्रेरणा को, हमारे उत्साह को, हमारे जो विश्वास को मजबूत किया है, उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस प्रोग्राम का समापन करना चाहूँगा। आप लोगों का पुनः एक बार थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी सर। आंटी जी एक मिनट यहाँ जी सर, मैं उनको यहाँ पे बुला रहा हूँ। हाँ भैया सर वो एक अपने सभी बड़े लोगों को भी, जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनसे कि मैं पहले कभी परिचित नहीं रही हूँ, उन सबको मैं प्यार, आशीर्वाद और नमस्कार सब अपना पेश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर आईबी सिंह की स्मृति में ये एक लेक्चर शुरू किया गया है डिपार्टमेंट में, इसके लिए मैं सबको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर आईबी सिंह बहुत अच्छे हस्बैंड थे, बहुत अच्छे पिता भी थे, बहुत अच्छे पुत्र भी थे, बहुत अच्छे भाई भी थे और शायद बहुत अच्छे टीचर भी थे। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन इन सबसे ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे और इस एस्पेक्ट को ज्यादातर लोग समझें और जाने, तो मैं उन सबके लिए हृदय से आभारी रहूंगी। मेरा सबसे बहुत ही ज्यादा
प्यार और आशीर्वाद। जी निरंकार भैया जी, बहुत अच्छा लगा आपको इतने दिन के बाद देखकर, और वी हैव ऑल द fond memories of you and your family, Rohit and Jaya, Pratibha and everybody. जी 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 जी, keep in touch निरंकार भैया, ओके ओके जी 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 जरूर। जी मालूम है भैया, अब कोरोना खत्म होने के बाद आइएगा तब मिलते हैं, ठीक है? ओके भैया। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आइए 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 आप कल नीचे डिपार्टमेंट में कहाँ पे बैठते हैं? आप डिपार्टमेंट में कहाँ पे बैठते हैं?